Okay, student. First we have checking of correctness of the following formulas. Okay. Here we have three formula. I will just tell you how you can solve it. So here in the first formula we have at the left side only one term, final velocity, and in the right side there are two terms. So according to the principle of homogeneity, you need to verify the dimension of LHS and RHS in each term. So first LHS is velocity, and you know that the velocity dimension is LT minus 1. Now RHS, we have here two terms. So first term is u is the initial velocity, that is LT minus 1, and the second term is AT, where A is acceleration having unit LT minus 2 and T is time having dimensional formula is T. When you solve this, you will get the value of AT is LT minus 1. So first, second and third. Therefore you can put the value, therefore V is equal to U plus AT. You will get here V LT minus 1, U again LT minus 1, and this you again have LT minus 1. So you can easily see here the dimension of the relation of left hand side is LT minus 1, and the dimension of the relation in the right hand side in each term. There are two terms and all the two terms have the same dimension LT minus 1. That means dimension of LHS is equal to dimension of RHS, which means the formula is correct. Formula is correct. Okay, this is how you can check the consistency of the formula. Now here S is displacement, this is the product of velocity and time, and this is the product of the acceleration and square of time. Now I will just write directly from this. This has dimension L because displacement is measured in length. Okay, now velocity has dimension L T minus 1 and time is T. Numbers are dimensionless, so acceleration has dimension LT minus 2 and time square has dimension T2. When you solve, you will get that L equal to T minus 1 T plus 1 left with L only, and plus L T minus 2 T plus 2 left with L only. Now again you will observe here the dimension of left hand side are equal to dimension of right hand side, that is LHS is equal to RHS dimensions. Okay, that means formula is correct. Okay, now we understood about the next. See here, LHS is time and time have dimension T only. Okay, and in RHS we have अंडर रूट L अपॉन G. इसको हम थोड़ा सा सही करके लिख लेते हैं, डेट इज G माइनस 1 अंडर रूट
को हम लिख लेंगे पावर हाफ। ओके, अब देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो L length, that means capital L, this value is G is acceleration due to gravity, have unit L, T minus 2 to the power minus 1 and final power is half. Okay, now when you solve this you will get L, this L become L minus 1, this will become T2 and final power is half. Here you will get T square to the power half, that means T only. This is RHS. That means T is equal to 2 pi under root L upon G, has dimension T is equal to T. That means the formula is correct. This is how you can check the consistency of the given physical formula. Okay. Okay, students. Next is third, converting one system of unit to another. Okay. Basically, we are here convert the SI and CGS systems into one another. Okay. इसके लिए हम जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, that initially in the first video you will see from there that the physical quantity Q is represented as N into U, which means the product of the numerical value and the measured unit, standard unit. Okay, so यहाँ पर आप इसको, because it is a constant for different systems, the physical quantity will not be changed, therefore हम यूज कर सकते हैं N1 U1 इक्वल टू N2 U2. ठीक है, यहां पे इसके लिए हम यूज कर लेंगे SI सिस्टम और अदर साइड के लिए यूज कर लेंगे CGS सिस्टम. और जो भी आपको सिस्टम गिवन होगा उसे आप यूज कर सकते हो. इट इज नॉट अफेक्टेड वट एवर इट इज. बस आपको ये याद रखना है कि आप किस पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ यूनिट को किस यूनिट में चेंज कर रहे हो. ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा डिफरेंट मैनर में देखिए कैसे लिख सकते हैं आप. बेसिकली आपको जो गिवन चीज होगी, कोई भी जो गिवन पर्टिकुलर यूनिट जो आपको चेंज करनी होगी डिफरेंट में, उसको आप फर्स्ट सिस्टम मानिए. ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है N2 को, तो हम यहां से बना लेते हैं डेट N2 इज इक्वल टू N1 U1 अपॉन U2. ये आपके पास एक सिंपल रिलेशन बन जाएगी. ठीक है, इसके बाद देखिए क्या करना है. सपोज हम U1 को SI सिस्टम बोलते हैं, SI सिस्टम कंसीडर कर लें. ओके, एंड U2 को CGS सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं. एज कंसीडर्ड. ओके, हमारे कंसिडरेशन से U1 SI सिस्टम है
और U2 CGS सिस्टम है। ठीक है, तो हम एक बेसिक क्वांटिटी ले लेते हैं, लेट्स से फोर्स है हमारे पास, ठीक है, जिसका हमें SI यूनिट को चेंज करना है। अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ फोर्स के लिए, फोर्स का SI सिस्टम है SI, और यहाँ पे हमने लिख दिया CGS। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो बस। SI सिस्टम में फोर्स को हम न्यूटन कहते हैं, और CGS सिस्टम में हम इसको डाइन बोलते हैं। क्लियर है? एज डेराइव्ड क्वांटिटी मैंने आपको क्या बताया, बिकॉज यहाँ पे आपको डायमेंशन यूज करनी है, तो डायमेंशन के लिए आपको इसका डेराइव्ड नेम नहीं लेना, आपको देखना है कि ये एक्चुअली किस बेस क्वांटिटी के बिहाफ पे था। तो न्यूटन बेसिकली क्या है, तो आंसर है न्यूटन है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से जो CGS सिस्टम है उसमें ये क्या हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपके पास दो सिस्टम की यूनिट हो जाएंगी। तो हमें यहाँ पे यही लिखना है, देखिए कैसे लिखेंगे। तो सपोज आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट एक क्वेश्चन हो गया, ओके, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, एक तो ये हो गया, एक मैं करा रहा हूं SI को SI टू CGS। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपको करा देंगे, कन्वर्ट 1 अर्ग इनटू जूल। ठीक है, विच मीन्स CGS टू SI। ये दो क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूं, इसके बिहाफ पे आप अदर क्वेश्चंस को करिएगा। तो पहले क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन नंबर 1 न्यूटन इनटू सो मच ऑफ डाइन। ठीक है, तो हमने यहां पे यूज कर लिया N2 इज इक्वल टू, देखो यहां से आपके पास सिस्टम पता चल गया न्यूटन और डाइन का। तो N1 आपके पास क्या है, जो यहां पे गिवन कर दिया 1। आपका U1 क्या हो गया, तो ये है आपका SI सिस्टम, SI यूनिट। U2 क्या है, दिस इज CGS यूनिट। इतना आपको डिस्क्राइब कर देना है आपके सॉल्यूशन में। इसके बाद फ्रॉम दिस रिलेशन N2 इज इक्वल टू N1, N1 आपके पास 1 है। अब आपको ब्रैकेट में क्या लिखना है, U1 CGS यूनिट क्या है फोर्स की, SI यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगी इसकी, CGS यूनिट ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। इस तरह से हो गया। अब जैसे आपने डायमेंशनल फॉर्मूले में किया था, बिल्कुल उसी तरह से अब सेपरेटली लिखना है इसको, विच मीन्स किलोग्राम अपॉन ग्राम विद इट्स पावर, मीटर अपॉन सेंटीमीटर विद इट्स पावर, इसी तरह से सेकंड अपॉन सेकंड विद इट्स पावर। इस तरह से आप सेपरेटली इसको लिख लेंगे। अब इसके बाद करना क्या है, जो बड़ी क्वांटिटी है उसको आपको डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी में चेंज करना है। तो क्या आ जाएगा, 10 टू द पावर 3 ग्राम अपॉन ग्राम, ये आ जाएगा 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर। ये है आपका सेकंड, ये कैंसिल हो गया, पावर -2। ठीक है, अब आप देखोगे ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, और ये आ जाएगा आपके पास 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 2, दैट मीन्स 10 टू द पावर 5। तो आपके पास N2 का रिजल्ट क्या आ गया, दैट इज 10 टू द पावर 5, विच मीन्स 1 न्यूटन is equal to 10 to the power 5 dyne. This is how you convert the SI system into CGS system. Okay, and next इसको बता रहा हूं, N1 is 1,
किस में है, तो ये CGS में है, ठीक है। हमारे पास CGS U1 आपका आप क्या बन रहा है CGS एंड U2 आपका बन रहा है SI सिस्टम, ठीक है। तो हम कर क्या रहे हैं, सॉल्यूशन नंबर 2। सॉल्यूशन नंबर 2 हमारा है टू कन्वर्ट 1 अर्ग into joule. This is our question. Okay. Now see, N2 is equal to N1 CGS system. Just I will tell you here. Joule is kilogram meter square second inverse 2, and erg is equal to gram centimeter square and second inverse 2. This is how we can write joule and the erg in the base units. So हमारा पहला है U1 is CGS, ये हो गया U1 अपॉन U2. So N1 के प्लेस पे 1 आ जाएगा एंड इन द ब्रैकेट U1 है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2 एंड दिस इज किलोग्राम सेंटीमीटर किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2. क्लियर. अब आपको करना क्या है कि सेपरेटली लिख लेना है ग्राम अपॉन किलोग्राम टू द पावर 1, सेंटीमीटर अपॉन मीटर टू द पावर 2 एंड सेकेंड अपॉन सेकेंड टू द पावर -2. ठीक है. आपको चेंज करना है न्यूमिनेटर को ही इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर. ठीक है. तो देखो क्या आएगा, ग्राम को किलोग्राम में लिखोगे तो आ जाएगा 10 टू द पावर -3 किलोग्राम अपॉन किलोग्राम टू द पावर 1. सेंटीमीटर को मीटर में लिखोगे तो आ जाएगा 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर मीटर अपॉन मीटर टू द पावर 2 एंड दिस विल बी 1 टू द पावर -2. तो ये आ जाएगा आपके पास ग्राम से ग्राम कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर -4, that means 10 to the power -7. This is value of N2. Okay, that means 1 erg is equal to 10 to the power -7 joule. This is how you can convert the one system of unit into the another system of unit. Okay, thank you. Note it. Thank you.